Now, GSLV F10 failure, ISRO's EOS-3 mission. GSLV का मीनिंग क्या है? जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। लॉन्च व्हीकल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट टेक्स ऑफ and takes a satellite to some orbit. That is called a launch vehicle. Why are we studying this? First of all, we'll be going to look into the story, what the story has been so far. Recently, Indian Space Research Organization suffered the loss of an important Earth observation satellite. हुआ ये कि इसरो ने लॉन्च किया EOS, बेसिकली GSLV F10 रॉकेट है। GSLV क्या है? लॉन्च व्हीकल का मतलब कुछ नहीं होता, रॉकेट। और EOS क्या है? अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो ये सारा काम कैसे करता है? सैटेलाइट को हमें ऑर्बिट पे ले जाना है, उसके लिए वी विल हैव टू काउंटर द ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ठीक है, ग्रेविटी से, अर्थ की ग्रेविटी से निकलने के लिए एक स्पेशल इसके वेलोसिटी चाहिए। अब उस इसके वेलोसिटी को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए? कोई भी बॉडी चाहिए, लाइक रॉकेट। या अब होता ये है, अगर हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में इसको समझने की कोशिश करें, बिकॉज दिस इज वन ऑफ लाइक फेवरेट पार्ट ऑफ यूपीएससी। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट द ऑर्बिट्स की लेंथ के बारे में भी पूछा है बहुत सारा क्वेश्चन। दैट इज व्हाई। तो बेसिकली एक रॉकेट है, ठीक है, दीज आर बूस्टर्स। इस रॉकेट के ऊपर एक सैटेलाइट रख दो। Okay. Now, this rocket will take the satellite, this is Earth, into some orbit. ठीक है? This is the work of the rocket. इसका नाम GSLV रख दो। अब ये नाम कैसे रखते हैं हम? कि which orbit is the satellite being taken to? ठीक है? जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे ले जा रहा है, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पे ले जा रहा है, तो GSLV के थ्रू ले जाएंगे। ठीक है, जो कि 3600 किलोमीटर से अर्थ से। ठीक है, और ये हो गई सैटेलाइट। ये सैटेलाइट ऊपर जाकर डिप्लॉय हो जाती है। डिप्लॉय मतलब इट स्टार्ट्स वर्किंग व्हेन वंस इट इज इन ऑर्बिट। ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक। तो इंडिया का जो GSLV अभी लॉन्च हुआ, GSLV रॉकेट, वो फेल हो गया। इट फेल्ड इन इट्स ऑपरेशन इन द क्रायोजेनिक स्टेज। वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट राइट नाउ। It failed to like start the cryogenic stage, the third stage, the last stage. The engine failed, and that is how we lost an EOS-03 satellite. EOS मतलब Earth Observation Satellite 03 number, because it is the third satellite in the Earth Observation series. Series of satellites are being launched for Earth observation. Okay. EOS-03 is an Earth observation satellite. It was scheduled to be launched. EOS-2 now. EOS-01 was launched on 7th November 2020, and EOS-02 is yet to be launched. Okay. Now EOS-02 is going to be launched maybe next year or in the December. It was, अब EOS-03 पहले launch हुआ है EOS-02 से, because of some technical delays. EOS-2 was not launched. We'll be first of all dealing with the satellite, then we'll be dealing with the rocket. What kind of rocket has taken that satellite to? ठीक है, we are basically deconstructing the whole thing into many parts that the whole satellite and the whole rocket is. Okay, so EOS-3 is a satellite, GSLV is rocket. The third important thing that we are going to consider in this lecture is what the failure of cryogenic stage, and what is a cryogenic stage. And the fourth important topic that we are going to deal in is what is the geosynchronous orbit, जिसमें ये satellite जा रही थी. Now EOS-03 is an Earth observation satellite that will provide with real-time monitoring of natural disasters like floods and cyclones. Real-time monitoring मतलब एक Earth observation center होगा, ठीक है, ये satellite यहाँ पे कहीं ऊपर है, ये इंडिया को हमेशा the satellite is watching. If it sees any kind of change, it is going to relay back to the ISRO, which will process this information and tell the required people, the ones who are like disaster management या जिसको भी, कि भाई वहाँ पे जाकर देखो वहाँ फ्लड आ गया है, या वहाँ पे साइक्लोन आ रहा है, यहाँ पे साइक्लोन बन रहा है, ऐसा कुछ.
तो दिस इज द बेसिक पर्पज ऑफ EOS-03. It is a synthetic aperture radar satellite. Synthetic aperture radar, we did this in a very detailed manner in NISAR satellite lecture. Go on and search for NISAR satellite. ठीक है, in the तरुण IAS NISAR satellite आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा. सिंथेटिक अपर्चर रेडार और जो नॉर्मल रेडार है उसके बीच बेस में डिफरेंस ये है कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार का डेप्थ परसेप्शन बहुत अच्छा होता है एंड इसका इमेजिंग टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू हैव हाई रिजोल्यूशन इमेजेस बेसिकली. तो दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड. बट इफ यू वांट टू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दिस, तो वी हैव डन इट ऑलरेडी इन निसार सैटेलाइट. निसार वाले लेक्चर में वी ऑलरेडी डिड दैट. तो फिजिकल केमिकल एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन इज द गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स फिजिकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल चेंजेस. बायोलॉजिकल चेंजेस क्या होंगे? फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट कवर का जो चेंज है, राइट, द काइंड ऑफ ग्रीन कैनोपीज दैट वी द सैटेलाइट कैन थ्रू लाइक व्यू फ्रॉम द टॉप. अगर वो ग्रीन कैनोपी रिड्यूस हो गई तो वी कैन एस्टिमेट कि हमारे पास फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हो गया. दिस इज हाउ द फॉरेस्ट सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज प्रिपेयरिंग व्हाट द फॉरेस्ट सर्वे, जो फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट जो है बाई एनुअल, दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सैटेलाइट इंफॉर्मेशन. ठीक है. अदर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स आर रिसोर्सैट, 2A, कार्टोसैट. नाउ कार्टोसैट इज व्हाट? अ मैपिंग टेक्नोलॉजी सैटेलाइट. ठीक है. इट इज बीइंग यूज्ड फॉर कार्टोग्राफी. ठीक है. ओशनसैट, मेगा टर्कोइज और मेगा ट्रॉपिक्यूज है ना, सरल, स्कैटसैट, इनसैट, 3DR एंड ऑल दीज आर द नेम्स ऑफ अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. आप ये एक बार देख लेना, पढ़ लेना ये क्या क्या है. ठीक है. एंड EOS-03 इज केपेबल ऑफ इमेजिंग द होल कंट्री एवरी 4 to 5 minutes. ठीक है. Because this satellite is not moving up with respect to Earth. It is stationary with respect to Earth. It is जहां पे एक बार लॉन्च करके इसको छोड़ दिया एयर में, ऑर्बिट में, ये वहीं पे रहेगी थ्रू आउट इट्स लाइफ. तो every 4 to 5 minutes it can generate the whole picture of Earth, whole picture of the area that it is looking upon. Okay. In addition to natural disasters, EOS will also provide मॉनिटरिंग ऑफ वाटर बॉडीज. फॉर एग्जांपल डैम्स का वाटर लेवल को मॉनिटर करना, रिवर्स के वाटर लेवल को मॉनिटर करना, क्रॉप्स, वेजिटेशन, कवर चेंजेस. ठीक है. इवन ग्राउंड वाटर मॉनिटरिंग कैन बी डन थ्रू दिस. ठीक है. तो ये हो गया हमारी सैटेलाइट के बारे में, EOS-03 के बारे में. नाउ लॉन्च व्हीकल. तो दिस ब्यूटिफुल रॉकेट इज कॉल्ड GSAT. GSAT what? F10. GSAT, GSLV F10, सॉरी, GSAT, GISAT नहीं, कहाँ है इसका नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम क्या है? GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल F10 इस पूरे रॉकेट का नाम है. यू कैन सी इट हैज 3 स्टेज. इट इज अ 3 स्टेज रॉकेट. 3 स्टेज रॉकेट में ये बॉटम, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, और ये वाला जो पोर्शन है इसमें हमारा सैटेलाइट है. मतलब इस पूरी बॉडी का लेंथ का बहुत छोटा पोर्शन कवर सैटेलाइट. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल GSLVs आर वेरी हैवी पेलोड रॉकेट्स. ठीक है. दे आर यूज्ड टू कैरी हैवी पेलोड अप द हायर एटमॉस्फेयर या हायर ऑर्बिट्स. ठीक है. तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज जो है वो सॉलिड स्टेट रॉकेट्स हैं. ठीक है. अब सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट रॉकेट का मतलब ये हुआ कि सॉलिड स्टेट में जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में होगा ऑक्सीडाइजर के साथ. ऑक्सीडाइजर मतलब ऑक्सीजन टैंक. ठीक है. ऑक्सीजन टैंक हेल्प्स इन कंबस्शन, और जितना फास्ट कंबस्शन उतना ही अप थ्रस्ट ऑफ द रॉकेट. सिंपल है. ठीक है. तो ये फर्स्ट स्टेज के रॉकेट्स हैं, ये सेकंड स्टेज और ये थर्ड. ये जो थर्ड स्टेज है यही क्रायोजेनिक स्टेज है. क्रायोजेनिक. अब क्रायोजेनिक स्टेज इज, यस इट इज रॉकेट साइंस. तो वी आर डीलिंग विद द रॉकेट साइंस है. क्रायोजेनिक स्टेज वो स्टेज है जहां पे फ्यूल इज केप्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर, अराउंड -270 डिग्री. ठीक है. तो ये टेम्परेचर मेंटेन करना ही वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट जॉब है in what a rocket, and that is why cryogenic engine development is like very sophisticated technology. That is why a very few amount of countries, only 6 countries have this cryogenic technology. India is one of the country which has developed indigenous cryogenic technology. ठीक है. तो वो cryogenic technology इसके
और व्हाट हैपेंड इन दिस फेलियर वाज कि ये क्रायोजेनिक इंजन ही फेल हो गया, स्टार्ट ऑफ ही नहीं हो पाया किसी टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। इट इज यूज्ड टू पुट हैवी पेलोड्स इन द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट थ्रू जीटीओ। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और आ गए, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट और जीटीओ। ये तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट हो गया, दिस इज जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। ओके, विल बी डीलिंग विद दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। और 3 रॉकेट के बारे में अभी हम पढ़ लें। ये 3 स्टेज रॉकेट है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज। जो थर्ड स्टेज है वो क्रायोजेनिक स्टेज है, ठीक है। बाकी दोनों नॉर्मल स्टेजेस हैं, मतलब यहाँ पे जो फ्यूल है क्रायोजेनिक स्टेज में फ्यूल लिक्विड फॉर्म में होता है और बाकी दोनों में सॉलिड फॉर्म में होता है, या लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, बट नॉट बीइंग केप्ट एट अ वेरी लो टेम्परेचर। अब पेलोड कैपेसिटी क्या है? पेलोड मतलब ये पूरे रॉकेट के ऊपर ये जो सैटेलाइट का लोड है वो पेलोड है, और ये पूरा रॉकेट का वेट है, ठीक है। तो पेलोड कैपेसिटी जीटीओ, अगर मैं जीटीओ में पहुंचाना है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचाना है, तो यू कैन टेक अ पेलोड ऑफ 2500 kg, और लो अर्थ ऑर्बिट में पहुंचाना है तो यू कैन टेक अ पेलोड ऑफ 5000 kg। लो अर्थ ऑर्बिट्स आर अराउंड लाइक 500 to 1000 किलोमीटर्स, बट जो जीटीओ है एंड जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स हैं, दे आर वेरी हाई अप द एटमॉस्फेयर। तो वहां पहुंचाने के लिए हमें ज्यादा रॉकेट्स, ज्यादा फ्यूल कंजम्पशन की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई वी कांट टेक हायर पेलोड्स इनटू द जियो स्टेशनरी ऑर्बिट एज कंपेयर टू द लो अर्थ ऑर्बिट्स। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द लॉन्च व्हीकल। नाउ व्हाट इज अ क्रायोजेनिक इंजन? This is a diagram of this is an image of cryogenic engine. We can't understand that, a lot of physics involved, but we'll be looking at this portion. Cryogenic means ultra low temperatures around -270 degrees. This engine technology uses fuel stored at ultra low temperatures. यहाँ पे fuel क्या है? liquid oxygen and liquid hydrogen, LOX and LOH. सॉरी, लिक्विड OH नहीं, लिक्विड हाइड्रोजन LH। बोथ आर लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर्ड एट -181 डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड हाइड्रोजन इज स्टोर्ड एट -270 डिग्री सेल्सियस। तो दीज बोथ आर स्टोर्ड एट वेरी स्मॉल, वेरी like low temperatures, and keeping and maintaining that low temperature is one of the major challenges, जिसकी वजह से क्रायोजेनिक इंजन सारी कंट्रीज डेवलप नहीं कर पाई है। Okay, this type of engine has a very high specific impulse as compared to the solid fuel rockets. Specific impulse का मीनिंग ये हुआ कि अगर किसी भी रॉकेट में, ठीक है, अगर ये रॉकेट है, रॉकेट में फ्यूल बर्न होगा और वो फ्यूल से एग्जॉस्ट गैसेस निकलेंगे। अब ये एग्जॉस्ट गैसेस जब जितना निकलेंगी उतना ही इसको अपथर्स्ट मिलेगा। इंपल्स का मीनिंग ये हुआ कि कितना कम फ्यूल बर्न करके कितना ज्यादा फ्यूल गैस निकल सकती है, और कितना कम फ्यूल बर्न करके कितना ज्यादा थर्स्ट मिल सकता है अपवर्ड्स। तो दिस टेक्नोलॉजी अल्ट्रा क्रायोजेनिक इंजन में ये बहुत ज्यादा है, जो दैट मीन्स वेरी फ्यू अमाउंट ऑफ फ्यूल कैन प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ थर्स्ट इफ द क्रायोजेनिक इंजन इज बीइंग यूज्ड। ओके, दैट इज व्हाई इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। इट इज वेरी difficult to develop, okay, but India has developed it. That is a success story. ISRO has developed, of course. तो this is about cryogenic engine. ये इंजन ही फेल हो गया काम करने में अभी जो लॉन्च हुआ था उसमें, अदरवाइज दिस वुड हैव बीन अ सक्सेसफुल लॉन्च। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब ये हो गया जियो स्टेशनरी एंड जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट्स, लाइक 36,000 किलोमीटर्स अर्थ के ऊपर। 30, ओके, इफ इट इज नॉट विजिबल आई विल राइट इट डाउन। ये 36,000 किलोमीटर्स लिखा हुआ है, 36,000 किलोमीटर्स फ्रॉम द इक्वेटर, ठीक है। इक्वेटर से 36,000 किलोमीटर्स जो ऊपर होगा वो होगा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। लेकिन डायरेक्टली यहां जाना मुश्किल है, तो व्हाट साइंटिस्ट्स डू, साइंटिस्ट ने एक नॉवेल टेक्नोलॉजी ढूंढी। व्हाट दे डू इज यहां से लॉन्च किया और एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। दिस ग्रीन कलर, ठीक है, दिस ग्रीन कलर यहां से अर्थ के अराउंड एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में प्लेस कर दिया,
और यहां पे एक दूसरा इंजन फायर किया विच विल ग्रेजुअली टेक दिस इलिप्टिकल पाथ, और जब ये यहां पे आया तो एक और इंजन फायर कर दिया, दिस विल टेक द सैटेलाइट इनटू दिस अर्थ जियो स्टेशनरी ऑर्बिट विच इज अराउंड 36,000 किलोमीटर्स अबव अर्थ। ठीक है, तो पहले वाले में तो डायरेक्टली 36,000 किलोमीटर्स जाना इज टफ, बट दिस टेक्नोलॉजी वेयर वी आर यूजिंग मैथमेटिक्स, ठीक है, दिस इज नॉट फॉर अस टू अंडरस्टैंड हाउ, what they do is they use an elliptical orbit to place the satellite into geostationary orbit। लेकिन तो ये वाला जो ऑर्बिट है, जो एलिप्स वाला ऑर्बिट है, वही हो गया जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट या जीटीओ। और ये जो सर्कुलर ऑर्बिट है अर्थ के अराउंड इक्वेटर के पैरेलल, ठीक है, इक्वेटर के पैरेलल, वो हो गया जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट की लेंथ 36,000 किलोमीटर है हाइट, बट जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट की हाइट कम है, काफी कम है। ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है बिकॉज यूपीएससी हैज आस्क्ड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस इन द अर्लियर ईयर्स लाइक दिस वन। दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी। सॉरी, अ सैटेलाइट यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन रिले। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में सैटेलाइट कौन सी जाती हैं, ये भी तो समझना जरूरी है कि हम कौन सी टाइप ऑफ सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स में, कौन सी को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ये तो फॉर दैट एग्जांपल दिस इज अर्थ। ओके, आप ये चाहते हो कि एक सैटेलाइट, ये फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये एक सैटेलाइट यहां पे रहे जो कि इंडिया को ही वॉच करते रहे लाइफ टाइम। ठीक है, तो इसके लिए आपको लॉन्च करना होगा जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट। जियोसिंक्रोनस मतलब the speed of the satellite is synchronized with the earth speed। अब ये दोनों एक ही स्पीड से मूव करेंगी तो ऑफ कोर्स एक दूसरे के रिलेटिव में स्टेशनरी रहेगी। ठीक है, तो जहां से लॉन्च हुई थी वो हमेशा उसी पॉइंट पे रहेगा, राइट। ये तो हो गया जियोसिंक्रोनस। अब जियोसिंक्रोनस की एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं? कम्युनिकेशन, ठीक है, लाइक अगर टेलीविजन के लिए कोई सैटेलाइट लॉन्च करनी है तो वो जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में रहेगी। क्यों? क्योंकि यहां पे इंडिया के जो रिसीविंग स्टेशंस हैं दे वांट टू कॉन्स्टेंटली सेंड एंड कॉन्स्टेंटली रिसीव डेटा, राइट। अगर ये सैटेलाइट कहीं यहां पे होगी तो इन स्टेशंस को रिसीव करना डेटा मुश्किल होगा। ओके, दैट इज व्हाई टेलीविजन सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आर मोस्टली प्लेस्ड इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट्स। तो ये तो हो गया जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, राइट। अगेन अर्थ, आप ये चाहते हो, आपका पर्पस ये है कि आप एक, फॉर एग्जांपल इफ इंडिया वांट्स टू हैव अ स्पाई सैटेलाइट दैट मेक्स अ राउंड ऑफ द होल अर्थ एंड गिव्स डेटा, तो वो वाली जो सैटेलाइट्स होंगी वो सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स में रखी जाएंगी जो कि पूरे अर्थ का बहुत सारे चक्कर लगाती रहेंगी थ्रू आउट द डे एंड दे विल बी ट्रांसमिटिंग डेटा। ठीक है, दीज आर कॉल्ड सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। ठीक है, देयर हाइट इज लेसर देन, या पोलर सिंक्रोनस ऑर्बिट्स इसको ये भी कह सकते हैं, या सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स, एंड इनकी हाइट जो है वो जियोस्टेशन सैटेलाइट की हाइट से काफी कम होती है। अगेन बैक टू द क्वेश्चन, the orbit is a satellite used for telecommunication, as we know. Relay are kept in a geostationary orbit. The question itself says that such satellites are placed in geostationary orbits. A satellite is said to be in such an orbit. Now, the question seeks to ask your understanding about the geostationary orbits. तो ये कुछ प्रॉपर्टी, ये कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, and the question asks, are these properties of geostationary orbit or not? Now geostationary orbit is a geosynchronous orbit. We all studied that कि अगर किसी कम्युनिकेशन सैटेलाइट को जियोस्टेशनरी ऑर्बिट में हम प्लेस कर देंगे तो इसकी स्पीड अर्थ की स्पीड के बराबर होगी। वही जियोसिंक्रोनिसिटी का मीनिंग होता है। जियोसिंक्रोनस का मीनिंग होता है कि जो स्पीड ऑफ सैटेलाइट है वो स्पीड ऑफ अर्थ के बिल्कुल पैरेलल है मतलब दोनों इक्वल है। अब जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी, राइट। द ऑर्बिट इज सर्कुलर। वी सॉ दैट द ऑर्बिट ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इज सर्कुलर,
but GTO, geostationary transfer orbit, is elliptical, as we saw in the earlier one, right? The orbit lies in the plane of the equator. Correct. Geostationary satellite का orbit जो है वो plane of equator में lie करता है, as we saw in the previous slide. See, this is equator, sorry, this is equator, green dotted line, and the red one, this is geosynchronous orbit. These two lie in the same plane. Okay. The orbit is at an altitude of 22,236 km. This is a false statement because 36,000 kilometers की लेंथ हाइट पे geosynchronous orbits की हाइट होती है, and that is why option 4 is not correct. Option 1, 2 and 3 are correct, hence our option should be A. Okay. So I hope you understood all this interesting science stuff, and if you have any questions you can ask them in comment section.